متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کا اجلاس کل ہوگا، اور یہ کمیٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں کل اپنا اجلاس منعقد کرے گی، جس میں جناب میاں افتخار حسین، جناب ڈاکٹر جمال دینی، جناب طاہر بزنجو، جناب محمد عثمان کاکڑ، جناب اکرم خان درانی، جناب راجہ پرویز اشرف اور جناب حافظ عبدالکریم صاحب شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا، ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے، اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا، اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے۔ 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور
لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی۔ ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جعلی وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں۔ لہٰذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے۔ اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے۔ کہ آج انہوں نے
سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے۔ اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے سمری بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں۔ اس طرح کی بے سروپا اقدامات کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے، لہذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات۔ اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پریس اسٹاپ کریں۔ I think سوال کر لیں پھر۔ چلیے باری باری وقار سسی صاحب کو میں نے فلور دی پیس اس کو ہاں جی کٹ گیا نہیں چلا۔ نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا، تاکہ ہم اتفاق رائے سے سارے مسئلے طے کریں۔ حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا، تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے، حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے، اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے شو کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے گی۔ جی سہیل ایک سیکنڈ، سہیل صاحب ایک منٹ جی ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ سہیل صاحب نہیں، ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے، جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا ہے۔ جی گربانی صاحب نادر گربانی صاحب جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں یہ سینٹ الیکشن ہارا ہے، اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا نو کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان سارے ہیڈ کنٹری کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات
फ्री एंड फेयर होते हैं तो कोई तरीका नहीं है कि आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को रोक सकते हैं। यही वजह है कि वो ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके गैर जमहूरी तरीक़ेकार को अपना के हमारा कैंडिडेट को रोकना चाहते हैं, मगर हम इलेक्शन कमीशन से बहुत उम्मीद रखते हैं कि जैसे उन्होंने बाई इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए स्टैंड लिया, जैसे उन्होंने आइन पे कोई सौदा नहीं किया, वैसे ही वो नेशनल असेंबली से मुंतखब सेनेटर इलेक्ट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के सामने भी कोई हथकंडे खड़े नहीं करेंगे। हम अपने अदालत पे भी उम्मीद रखते हैं कि वो किसी फोर्स को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारा उम्मीदवार को, इसलिए वो डरते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीतेंगे तो उसको वो किसी तरीके से रेस से आउट रखना चाहते हैं, मगर इनकी ये सारी कोशिशें इंशाअल्लाह ताला नाकाम होंगी। 12 तारीख को इलेक्शन होगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीतेंगे। जहाँ तक हमारा लॉन्ग मार्च का सवाल है, उस पर हमने हमारा पिछले जो सरबराही इजलास है उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, ऐलान भी किया था, और उसके जो भी लॉजिस्टिक्स है, जो भी प्रैक्टिकलिटीज है, सारे के सारे पार्टीज एक पेज पे हैं। मेरा ख्याल में फैज़ाबाद का नाम लिया गया है, तो फैज़ाबाद दोनों पिंडी में भी है और इस्लामाबाद में भी। जी अब्दुल मालिक साहब जी आ रहे हैं। आज के इजलास में हमने कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं की। इसलिए कि मैं थे उन मीटिंग्स में, मैं आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इसलिए मीडिया में कुछ गलत खबरें आई हैं हमारे मुलाकात के मुताबिक। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का मुलाकात था, वो मैं काफ़ी देर से चौधरी शुजात साहब का सेहत पूछने के लिए पहुँचना चाह रहा था। डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे। कल मुझे वो मौका मिला। हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात था हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में, हमजा शहबाज शरीफ साहब ही है। 2 साल बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आया है, तो हमारा मिलना बनता है, हमारा बात करना भी बनता है। हम सब इत्तेहादी हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर के नीचे। लेकिन मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सामने बार बार ये मौके दोहराया है, एम्फसाइज किया है कि अब फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेंगे। क्या अदम एतमाद इस्तेमाल होना है, कहाँ होना है, कब होना है, ये सारे फैसले कंसेंसस के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही कर सकते हैं। मैं उससे पहले ऐसे कोई ऐलान नहीं कर सकता। उस्मान साहब मेरा सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी को बिलीव करना चाहिए। नंबर 1, 2 या 3 वोटों का फर्क होगा। अगर खुदा न खास्ता आपके उम्मीदवार में आ जाते हैं तो फिर आपका क्या रद्द होगा, क्योंकि ये ज़मीन की आवाज़ की सब किसी की जाती। हम जानते हैं इंशाअल्लाह ताला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुतालबा है, तो वो सिर्फ एक चेयरमैन का इलेक्शन में नहीं, सिर्फ एक सेनेट के इलेक्शन में नहीं, वो हर इलेक्शन में हमारा ये मुतालबा है। हमारा मुतालबा है कि हर इदारे अपने अपने काम करें और अपने डोमेन में रहे। अगर इसका कोई खिलाफ वर्जी होता है, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हो या किसी और इलेक्शन में हो, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हमने कह चुके हैं कि हम ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने लेकर आएंगे। ज़रा मेरा ख्याल में मरियम साहिबा ज़रा बात कर लें, फिर उसके बाद और तो नहीं, मैं ये जो बिलावल साहब ने बात की उसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप ये जानते हैं कि सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शन में आप माइनॉरिटी में हैं, हुकूमत और उसके इत्तेहादी माइनॉरिटी में हैं, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद है,
अपोजिशन जिसमें PDM की जमातें शामिल हैं वो मेजॉरिटी में है, तो आपने किस बेसिस पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? वो कैंडिडेट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसमें वो आपने अपना कैंडिडेट किस बेसिस पे खड़ा किया है? वो तो कामयाब नहीं हो सकता। उसके कामयाब होने की सिर्फ 2-3 ही वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि आप पैसे से ख़रीदो फरोख्त करें, दूसरा ये कि आप एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके दबाव डाल के आप अरकान को सेनेट में अपोजिशन के अरकान को तोड़ने की, उनको अपनी जमात की पॉलिसी से या डिसिप्लिन से हट के वोट देने की आप उनके ऊपर ये दबाव डालें, उनको फ़ोन कॉल्स आएँ जो कि आना शुरू हो गई हैं। तो इसी बेसिस पे आप सेनेट का इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं, आपके पास मतलूबा तादाद तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप बहुत भाषण सुनते आए हैं हम जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था, क्योंकि उनको पता था कि वो हार रहे हैं, तो हमने घंटों ये भाषण सुने टीवी के ऊपर कि जी सेनेट में पैसा चलता है, सेनेट में ये चलता है, सेनेट में वो चलता है, ओपन हैंड्स ऑफ हैंड्स होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। तो अब कौम इंतज़ार कर रही है कि आप कब ये ऐलान फरमाएंगे कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, और कब आप ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, कब आप PCP से ये राय मांगेंगे, कब आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे ये मसला कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए और खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए। तो कौम इस पे इंतज़ार कर रही है। जी जावेद साहब। आपको देते जी ठीक। आ रहे हैं। पंजाब में तहरीक एतमाद या कांग्रेस लीडर लाइक करने की बात हुई, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? आपके सिपाही के नवाज शरीफ का क्या मौक़िफ़ है? मैं थैंक यू। मैं ये समझती हूँ कि पंजाब में पहले भी जो पार्टी जीती थी पंजाब में, इतनी 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती थी, तो वहाँ पर हुकूमत बनाना मुस्लिम लीग नून का हक था जो उससे धौंस और धांधली से छीना गया। तो उसको सामने रखते हुए पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है, और उसमें हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जद्दोजहद नहीं की। तो ये फ़ैसला हम आपस में बैठ के PDM जब बैठेंगे हम इस पे गौर करेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि पंजाब असेंबली के बहुत सारे हुकूमती जमात के MPAs हमारे साथ राब्ते में और बहुत बड़ी तादाद में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हम ये सब चीज़ें सामने रख के इस पे फैसला करेंगे। थैंक जी यू। जैद इरफान साहब। मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे है कि PDM असीम के मामले पे आज क्या बातचीत हुई है और इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। दूसरा, लॉन्ग मार्च कितने तक रहेगा, उस पर कितने अखराजात आएंगे और वो कौन बर्दाश्त करेगा? सर इसी को सोशल मीडिया में करना है। मैं मौलाना साहब से ये पूछना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च का इस दफा हटम क्या होगा या पहले की तरह जो है आप इसी हिकमत अमली के तहत वापस लौट जाएंगे? नहीं वो हो गया। जी मौलाना साहब, जी एक सेकंड। देखिए, जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है, मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि उसमें इस्तीफ़ों का ऑप्शन हर सूरत में मौजूद है, क्योंकि हम बेनतीजा जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, ना आवाम को इस तरह की कोई ऐसी मशक्क़त की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम तहरीक को तहरीक के अंदाज में ले जाना चाहते हैं और उसको नतीजा खेज़ साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो उसी तरह जिस तरह के पहले हमने कहा था कि उसमें अब इस्तीफ़े तमाम पार्टियों के सरबराहों को मिल चुके हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम इस ऑप्शन को कोई नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हम कुछ मामलात के लिए 15 को फिर मिल रहे हैं और कुछ जुज़ियात हैं कि जो उनको हम क्लियर करना चाहेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज माजिद साहब जी, एक हाफिज साहब, दे रहे जी, दे रहे। एक मिनट जी। हाफिज साहब। अब
तख्ता किस तरह होता है और तख्त कैसे होता है ज़रा बता तो दें। देखिए, हम इक़्तिदार में इस तरह नहीं आना चाहते कि जिसका न कोई सर हो न पैर हो और चोर दरवाज़ों से और इस तरीके से के गैर जमहूरी तरीक़ों से। हमने हर काम हर अपने मौके पे करना है। आज सेनेट का इलेक्शन आया, आपने देखा हमने उसमें हिस्सा लिया और हम उसमें जीते हैं। अभी दूसरा मरहला आ रहा है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन का, सो उसमें हमने अपना कैंडिडेट जो है उसका अनाउंस कर दिया है। बाकी जितने सवालात आप कर रहे हैं यही वो सवालात हैं जो सियासी फ़ज़ा में घूम रहे हैं और इंशाअल्लाह एक एक करके आप हज़रात को हम हतमी फ़ैसले सामने देते रहेंगे इंशाअल्लाह। सज्जाद कुरैशी साहब। जी सर, ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं उसमें पीडीएम का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो जो मिला जुला रुझान रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का उसमें असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी जानब देखा गया है कि पीडीएम की जाने से जितने भी इलेक्शन हुए हैं हुकूमत के वक्त को वाइट वॉश किया गया है। तो क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन में जो एस्टैब्लिशमेंट है ये असरअंदाज होगी? जैसे मैंने पहले भी कहा है, जहां हम इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल को कंडेम करते हैं, वहां अगर वो अमल दखल नहीं करते हैं तो हम वेलकम करेंगे। हमें ये एक मुसलसल एक हकीकत बनाना है पाकिस्तान में। ये एक दिस शुडंट बी द एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द रूल, इट शुड बी अ परमानेंट रियलिटी कि हर इदारा अपना अपना काम करते हैं, अपने दायरे में रह के काम करते हैं। ये वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तानी रियासत तरक्की करे, पाकिस्तानी जमहूरियत तरक्की करे और फिर पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का सवाल है और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन का सवाल है, मौलाना फजल रहमान साहब ने आपके सामने जो हमारा मीटिंग का रेजोल्यूशन है वो रखा है, जिसमें हमने स्पेसिफिकली कहा है कि जो अगर कोई मुदाखलत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में या डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होगा, हम कौम के सामने सारे हकायक इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। गुलाम रसूल साहब। हम सब चाहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। उन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। वो तरीक़ेकार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंसेंसस के साथ फ़ैसला करेंगे और कंसेंसस के साथ ऐलान करेंगे। जहाँ तक ये सवाल है नून लीग का या दूसरी पार्टीज़ का, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएँ या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएँ। वो सिर्फ हम सब का जो मुतालबा है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों इसमें इन्वॉल्व ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जमहूरी तरीके से हो, तो कोई इसने इनकार नहीं करेगा। हो मेरा ख्याल मुकम्मल सवालात तो मुकम्मल हो गए मेरा ख्याल। बस दो रह गए। एक दो सवाल कि हमने देखा कि पीडीएम पहले जारखाना थी, लेकिन कराची के जलसे में हमने देखा कि साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा था कि दोस्तों यानी कि आप सब दोस्तों जिगर गुलशन को खाते थे कि आप मेरी हमारी बात सुने कि हमने किस तरह एक तहजीब अपनाने की ज़रूरत को आप टाइम भी दें। और कराची नहीं था, लड़काना था। उसके बाद हमने देखा कि आप पीडीएम की तहजीब में तब्दीली आई, मौसम कराची नहीं था, लड़काना था और सबसे बड़ी कामयाबी सेनेट की इलेक्शन डिवीजन में ऐलान किया है। तो फिर अस्तीफों की क्या जरूरी है कि अस्तीफे दिए जाए, फिर काम और किया जाए? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोई के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आए हैं। हमने सारे फैसले मिल के लिए हैं और उसी पे हम अमल कर रहे हैं। हमारा पहले दिन पे जो 20 सितंबर पे यहाँ मीटिंग हुआ था और हमने आपके सामने एक्शन प्लान ले किया था, उसमें हमारा हर फोरम पे इनको चैलेंज करने की बात था, हमारा लॉन्ग मार्च की बात था, हमारा अदम एतबार की बात था, हमारा इस्तीफों की बात थी। तो ये सारे बातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ऑब्वियसली जब हम आपस में बैठते हैं तो सारे पार्टीज़ का मुख्तलिफ राय हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा हतमी फैसला है वो कंसेंसस के साथ हम आपके सामने रखते हैं। किसने कहा जल्दी है? नहीं, ये ऐसा नहीं कुछ। आप
देखिए आप एक सवाल करें ना, अभी आपने एक सवाल किया कि आपने इस्तीफे अभी तक ऐलान क्यों नहीं किए। अभी आप कहते हैं आपको इस्तीफों में जल्दी क्यों है। ये दो सवालों में तजाद है। तो अब सवाल आपको हमारी एकजहती पसंद नहीं आती। नहीं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना साहब ने सही फरमाया कि आपको यकजहती पसंद भी आनी चाहिए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन से PDM ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, जो अचीव किया है उसने पूरे मुल्क को हिला के रखा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।